Hello friends, I'm music composer Nikhil Kamath, and today I'm going to introduce you to a very charismatic personality, a composer, a lyricist, a host, a TV entertainer, and a great playback singer, and a super human being. None other than my friend Shaan. Hi, Nikhil Shaan, how are you, brother? good, Nikhil जी. हम लोग इतनी बातें करते हैं लेकिन पहली बार ऐसा कैमरा और लाइट्स के सामने. बिल्कुल. So I'm very excited to be interviewed by one of my dearest, oldest, and one of the most talented people in the industry. तुम बिन जिया जाए कैसे? So sweet. तब हो जाए. I'm all geared and set to have a lovely. Chill Pill with Nikhil. I welcome Shaan. Thank you for joining us. Thank you so much. Thank you, Shaan bhai. आपने चिल पिल नाम रखा ना, उसलिए मैं थोड़ा सा चिल्ड आउट स्टाइल में आ गया. It's also very hot. Yes, very hot. Shaan bhai, whenever I met you, you're a bundle of positivity. Apart from your mesmerizing voice, you're always laughing, you're always happy. Whenever you come to the studio also, you're always happy, you're always positive, and you give your best. What is the secret of this motivation? नहीं, सच पूछिए तो there's no motivation for being happy because I think that's my default mode. और हाँ, sometimes if you're having a bad day or something goes wrong or someone has really hassled or irritated you, तो वो भी आ जाता है चेहरे पे. लेकिन ज़्यादातर I wake up happy always, reset to happy every day. And many reasons to be happy also, many reasons to smile. People have always, you've got, I always feel that I've got more than I deserve. I've got so much of love and appreciation for something that I didn't work too hard on, something that came naturally और लोगों ने उसे accept किया और तो this could have worked the other way around also, कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने बहुत कोशिशें की लेकिन सामने से वो प्यार या वो expectation जो आपके मन में थी वो बात नहीं आई. So that can make a person a little pessimistic and sad, but I think I got very lucky, and with all humility I got things quite easily, and so I feel a lot of gratitude, I feel a lot of happiness ke life अच्छी है. But Shaan, this positivity of yours and this smiling face reflects in your songs also. नहीं. And I remember when your first song came, I mean, which one I heard, Musu Musu, and the other song. वो पहली बार. वो पहली बार. It really reflects, and then when I heard Musu Musu for the first time, I was like, what is this man? Who's the singer? That time I was here and there, whether I should come into music or not come into music. But when that song came, trust me, it came on Chitralok, Right. which used to come at 8:30 in the morning, and I said, this is it, man, this is it. And then I found out, and it was Shaan. सर, आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो. मुझे याद है जब वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज द 1st of January, आई कांट रिमेंबर व्हिच ईयर. Yes. पेट्रोल पंप, आई वाज विद सलीम सुलेमान. हम लोग कहीं पूरी रात पार्टी करके घर लौट रहे थे और आप एकदम फ्रेश एज द मॉर्निंग ब्रीज, ब्रदर, आप वहाँ से चिल्लाते हुए आए. मैं बोला हम लोग आधी नींद में. सलीम के साथ आपकी अच्छी दोस्ती थी ऑलरेडी देन. What a year it's going to be. This is going to be the best year of our lives. बोल के आप एकदम ऐलान कर दिए थे वो. So that was my first meeting with you. Then I realized this is Nikhil of Nikhil Vinay fame, and आपके 2-3 काफी पॉपुलर गाने आ गए थे. जी. So I was so excited to meet you, and also the tall happy person that you were. I mean, you still are of course happy and tall, but वो first impression था. So that was also wonderful. और हाँ, तो I think I've been very lucky to and शुरू के भी जो गाने थे, honestly देखिए वो very small film, and the songs were also, मैंने इतनी कोई खास expectation नहीं रखी थी, but coincidentally वो गाने, पहला ही गाना hit हो गया तो गाड़ी चल पड़ी वहीं से. And the very next song, the very next offer I got to sing after Musu Musu, वो पहली बार which I must mention was composed by Vishal Dadlani as a solo composer. Probably his only work as a solo composer until they collaborated, he and Shekhar. Yes. But the next offer I got was to fly down to Chennai, sing a duet with one of my favorite singers, Sukhvinder Singh, for a composer the stature of A.R. Rahman. Already, he had done some great work already by then. And I mean, he was the A.R. Rahman already. Yes. And I'm singing for Shah Rukh Khan. तो मैं बोला ये हो क्या रहा है मेरे साथ. So things just took off, and I think I always say that I believe in destiny. तो जब कुछ होना है तो वो हो जाता है, तो ज़्यादा उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए. Now my audiences have asked,
you have to sing one line of Musu Musu. हाँ क्यों नहीं And you know that other song from प्यार में कभी कभी. हाँ दोनों हाँ आपको गाना ही पड़ेगा. Ironically मेरा पहला ही गाना था वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना होता है प्यार क्या इसने जाना. और for the smiling face, मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए मुसु मुसु हासी देव हे जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी. क्या बात है. Superb, superb. हाँ जी तब से मुस्कुराते आ रहा हूँ. When you got your first song, I think you put in your best because even now you do that. I've never seen you half-heartedly singing any song. Even on the the studio, you always give your best. I've never seen you singing unrestricted. You always going on the mic, and giving your best. You don't think of the fruit. मैं अपना काम अच्छा करूँगा. हाँ नहीं बिल्कुल. And that's what has happened in your case, Because I was hearing Chitralok when your song came. जी. It was a small radio, and that's where I read. Yeah, I mean this is old Shaan. So and it's. Nikhil ji, I know for a fact that even before you came in as a full-fledged composer, you were actively a curator and a collector of music. Yes. वो years तो आपके बचपन से ही I think काफी trained हो चुके थे. और हमारे साउथ बॉम्बे के बहुत कम कंपोजर्स हैं. एक आई थिंक विजू जी हैं एंड एक आप हैं. तो वो एक साउथ बॉम्बे फ्लेवर भी आता है थोड़ा सा कूल. उसलिए वी कैन चिल पिल. बातें बहुत भारी हो जाती है. Yes. And also I like to keep life light. Of course, I mean as you live, you learn so many. Life teaches you so many interesting life lessons, and you grow in experience. And the more you grow in experience, the more you realize that life's too short to have too many. वो बोझा लेकर जीने का कोई to carry these unnecessary burdens. So you have to travel light in life. So I love to travel light. In fact, मैं कभी back to back 3-4 shows भी होते हैं. And it's a very stupid thing to say, but in the middle of that. But I literally travel light. मतलब वो मैं एक cabin bag में I can pack in very smartly all my clothes. बीवी नहीं बना के दी आजकल lately. She found this stone. Someone told her that get him to wear this. For some strange reason, she said it will help him calm down. तो वो भी उनको लगता है कि मैं कोई एक ऐसा दिन जब कुछ नहीं करना हो ना तो मेरे लिए वो सबसे भारी दिन है. Okay. I need agenda. I need you need agenda. Yeah, कि आज का दिन कुछ किया. Even my same thing with me. I like to keep working. I like to do something. हाँ. So जब एक तो टाइम था when recordings चल रही थी और सुबह उठ के कहीं फोन आ जाता था. एक रिकॉर्डिंग के बीच में दूसरा कहीं जाना है और फिर things eased out a little bit. But I looked at that as an opportunity to proactively do things myself. So that's why you could introduce me as a lyricist and a composer. वरना कहाँ ये सब होता. Friends, Shaan bhai has started his channel and I'm a great follower of all his songs. He writes, he composes and he shoots, and this is a very, very, very important thing because today independent music is going to rise. Film music is always going to be there, but independent music is always going to be parallel. Shaan bhai, what is your take on independent music today? I love your songs here. All your songs which you are doing. I'm going to talk about one particular song later. अरे वाह, अच्छा ये तो this is something. This is going to be surprising for me. Yes. But you're going to tell me. Independent because I started जो शुरू के जो albums थे, of course not Naujawan, that was composed by Bidu and written by Rajesh Johri ji, God bless him. And that was a duet with Sagrika. So that was 1996. ऐसा होता है. ऐसा होता है. बाप रे. You're going to sing. No. He's going to sing ऐसा होता है. When I was not in Bollywood. And I was staying in South Bombay, and I used to imagine in front of the mirror that I'm a music composer, and all Shaan is going to sing for me, and Sagarika is going to sing for me. So every day I used to have new fantasies. तो तब मैं ऐसा होता है क्या मैं गाना गाता था. I remember buying the audio cassette from Opera House. Nice. So you want to sing one line of I think every brother sister would connect with that, right? Yes. It's a mind-blowing number. But of course, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि भाई बहन के गाने वो एक ही आप राखी पे रिलीज कर सकते हो. Correct. तो इसलिए हम लोग को वी हैव टू कीप दैट लिटिल अंडरप्लेड एंड कीप इट एज इफ टू पीपल हु आर टिपिकली भाई बहन में होती है झगड़े होते हैं हम लोग वी आर वेरी ऑपोजिट बट ऑब्वियसली दैट ब्लड कनेक्शन इज देयर. सो तो उस तरह से ये गाना किए थे कि एंड उस जमाने में दीज वर सपोज्ड टू बी पॉप लिरिक्स.
But Shaan, I just sorry interrupt you. That song became very popular. Right. And it was the start of indie pop. No, true. It was the start because I bought the cassette. No, this is 96, early 96. Yes, I remember the video. You know, वो लंबे बाल वाले. She's up the stairs and लंबा बाल. Just a few lines. Sure. In fact, before I start, we were actually जब हम लोग ने lyrics पढ़े ना तो बिडू के साथ हम लोग कर रहे थे, लंदन गए थे, हम लोग सोचे कि बहुत एकदम अल्ट्रा कूल कुछ होगा, पर मैं पहनूं डेनिम जीन्स, तू पहना से सर जीन्स तो डेनिम के ही होते हैं, मतलब ये दिस इज डोंट थिंक साउथ बॉम्बे, डोंट थिंक बैंड्रा, थिंक पैन इंडिया. इंडिया में ऐसी बात करे तेरे डेनिम जीन्स अच्छे होते. एनीवे, मैं पहनूं डेनिम जीन्स, तू पहने चोली लहंगा, तेरी चप्पल कोल्हापुरी और मेरा इंग्लिश जूता महंगा, मैं तेरे बिन तू मेरे बिना, बीच की लाइन्स कट किया हूँ. मैं तेरे बिन तू मेरे बिना, है मुश्किल अकेले जीना, कभी कभी हाँ प्यार में ऐसा होता है, ता ता पा बा बा बा, ऐसा होता है. वाह, कुछ 20-25 साल बाद ही गाना गा रहा हूँ मैं. I know. मजा आया गाते गाते. But see, I remember that song and even our audiences remember that song. बीच में डायलॉग्स होते थे, चिल्लाना चीखना. I remember when we had to shoot the video, तो केन घोष तभी सारे मतलब वीडियो का पूरा जो इंडी पॉप का जो पूरा जिम्मेदारी थी, दारो मदार उन्हीं के हाथों में था. तो हम लोग भी शूट कर रहे हैं एंड वन ऑफ माय वेरी फेवरेट आर्टिस्ट एंड ही हैड जस्ट न्यूली स्टार्टेड, उनका एक गाना ही आया था, मदार दी रब रब कर दी, दलेर पाजी. अरे क्या बात है. दलेर पाजी भी दोनों हम लोग के मतलब वो जो मेकअप रूम से आसपास में थे. यस से बात कर रहा हूँ, अरे आप भी आओ, तो मैंने कहा अरे जी आप भी, हाँ मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ. मैं बोला हम भी वीडियो बनाने आए. कैन कर रहा है मेरा, तो वो फिल्मिस्तान में ना तो काफ़ी सारे स्टूडियोज हैं, तो हम लोग हाँ हमारा भी तो कैन कर रहा है. अरे एक साथ दोनों का मुझे याद है उन्होंने शूटिंग नहीं करा, दोनों का शूट आउट हो रहा है. मैं डर गया था, शूट आउट कैसे होगा मतलब अरे आउटडोर में हो रही ना. तो सर हाँ ये बात भी सही है. तो हम लोग बहुत हंसे थे. तो उसके बाद हम लोग गए तो देखा कि एक ही सेट में कैन ने यहाँ अपना कुछ सेट बना के रखा है, कोई बॉक्सिंग रिंग या जो भी एक वो घर का एक सेट है, यहाँ बाजी का सेट है, पूरा खेत वेत वो पूरा सेटअप. तो मैंने क्या नहीं हो गया भाई, तुम लोग जब तक तुम लोग रेडी हो रहे तब तक उनका शॉट लेंगे, जब तक वो रेडी होते चेंज करें तब तुम्हारा शॉट लेंगे. सो दैट्स हाउ वी शॉट हिज नेक्स्ट ट्रैक जो था ना, आफ्टर कट के कालजा, वो गाना उनका. और अपना ऐसा होता है, एक साथ ये वीडियो हुए थे साथ में. I think it was a lucky thing that Ken did both the songs together. Both were super hit. Because both started. Another coincidence was the model in his video, उनका नाम भी सागरिका था. तो वो कंफ्यूज हो गया, अरे आप मेरे वीडियो में हो, बोलो नहीं मैं अपने वीडियो में हूँ. So it was a very confusing, crazy day, but all this memory has come back after many years. Shaan bhai, I'll talk about your better half. जी. Whenever I met Radhika, when we used to meet in parties, she's such a wonderful person, so sweet and very very polite and and gives she was very positive in everything. True. You wrote a song and you composed a song and a lyric on Radhika, and the song is Radhika. Don't feel everybody knows about it. No, I know. I mean, I think you're one of the few who has written a song on his wife. We make songs for other people, but अपनी बीवी के बारे में हम लोग गाना नहीं बनाते. Please share your experiences on this. जितना करूँ राधिका के लिए उतना कम, क्योंकि in fact we also married in 2000 or 2000 से, वो कहते हो she was has always been my lady luck, my friend, philosopher, guide. मुझसे 6 साल उम्र में कम है, लेकिन अकल में बहुत तेज़ है, मुझसे बहुत she's very wise. So I take a lot of her ideas, suggestions, और I know कि अभी कभी रूट भी जाती है तो she has a point, लेकिन थोड़ा सा मेल ईगो होता है तो सीधा कैसे मनाऊं. तो मैंने उनके लिए बहुत पहले एक गाना लिखा था, when we were actually seeing each other. तभी उनका नाम नहीं था उस पर, but गुमसुम हो क्यों, पास आओ ना, रूठे हो यूं, मान जाओ ना. तो तब ये थोड़ी इमेच्योर थी, मतलब नया जब था ना, तो छोटी बात पे अपसेट है. और ये टिपिकल women who has ever understood them, वो बात थी ना कि मैंने किया क्या ये भी नहीं बता रही है, और उस चक्कर में मैं अपनी ही पोल खोले जा रहा हूँ. अच्छा उस वजह से वो भी हुआ था, अच्छा तो उस वजह से नाराज़ नहीं होने, मुझे पता नहीं था, अब पता चला कि तुमने वो भी किया था. इस तरह की चीज़ें हो रही थी उसमें. तो उसमें मैंने वो गाना लिखा था उनके लिए. और फिर ये वाला तो अभी कंप्लीट, जब
तो ये गाना एक्चुअली आई जस्ट पेंड इट फॉर हर बर्थडे सेलिब्रेशन एक. Could you sing it? हाँ. मेरी रातों की तुम सुबह, मेरी जख्मों की तुम दवा, मेरे होने की तुम वजह, राधिका. अरे वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. तो फिर वो गाना ऐसा हो गया था कि हम लोग मालदीव्स गए थे. तो मालदीव्स में हम लोग ने ऐसे कुछ टाइम पास में कुछ शूटिंग किए थे. उन लोग ऑफर दिए थे ऐसा कि दे शूट लाइक अ वीडियो पैकेज और कुछ स्टिल्स. तो वो भी मिल गया था. तो मैंने चलो सस्ते में वीडियो भी बन रहा है, मॉडल भी मिल गई मुझको फ्री में. तो फिर मैंने वो गाना यूट्यूब पे रिलीज़ कर दिया. क्या? बट या आई मीन इट्स ऑलवेज नाइस टू acknowledge your love and appreciation for your loved ones. इतना तो बनता है. I think you're unique in this matter. नहीं. Shaan bhai is unique in this matter. Shaan bhai, as a composer, I worked with a very legendary lyricist Yogesh ji. जी. जिन्होंने कहीं दूर जब दिन ढल जाए लाया. I was very lucky. नहीं बिल्कुल. I think देसी मेम नहीं. Yeah, English में चोर और चांद. Yes. सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना. Yogesh ji always spoke very highly about your father. No. And you won't believe it that there were times when we spent one hour talking about Manas Mukherjee sahab. I used to ask him, out of curiosity. And he used to tell me how he used to come to your house, how उन लोग गाने बनाते थे, how your mother used to serve tea, and yes. And he also used to speak about you. योगेश जी तो मेरे एक बहुत प्यारी एक याद है कि हमारे घर में डैडी एक पॉइंट के बाद पता नहीं क्यों ये डिसाइडेड कि अब मैं जाके काम नहीं मांगूंगा. मैं जो बहुत हो गया यहाँ वहाँ जाना, हर प्रोड्यूसर हर के पास जाके सर मैं आपकी फिल्म करना चाहता हूँ. उनकी एक मेरे डैड का एक किस्सा बहुत फेमस हो गया था. बाद में मुझे पता चला कि राज खोसला जी के पास गए थे. और राज खोसला जी उस टाइम के बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे. तो बांद्रा स्टेशन के पास ही उनका ऑफिस था. तो वहाँ गए तो बोले कि अरे डैड बहुत यंग से शुरुआत की थी. एट फर्स्ट आई लॉस्ट हिम ओनली व्हेन ही वाज अर्ली 43-44. सो ही वेंट देयर एंड अरे बेटा गाने तो तेरे बहुत अच्छे. और डैड के एक बहुत अच्छा गाते भी थे, खुद हारमोनियम बजा लेते थे. सो ही डिडंट नीड एक अपना एक बाजा लेकर पहुंच गए, गाना सुना दे. तो काफियों के पास वो ऐसे गाने सुनाकर और सब बहुत इम्प्रेस्ड. तो उन्होंने वो कहने लगे कि ये फिल्म तो मैंने ऑलरेडी साइन कर लिया फला कंपोजर को, तो मेरा जो नेक्स्ट फिल्म है वो तू कर रहा है. तो डैड अचानक से बोले कि राज जी देख लीजिए नेक्स्ट फिल्म आप कह रहे हो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगा. तो बोले ये क्या बात हुई? बोले हाँ क्योंकि मैं अब तक जिनसे भी मिला हूँ ना सबका मैं नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ. अभी का अगर कर सकता हूँ तो कर लीजिए, अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है. लेकिन सबका मैं नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ. So sweet. So then I think Raj Khosla ji also shared it with some of the assistants were there. तो ये I got to know this from 2-3 other people. अरे आपके डैडी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एक ये था. एक था कि काम डैड को कम मिला लेकिन प्यार उनको बहुत मिला, अप्रिसिएशन बहुत मिली. और आज भी अगर आप लता जी के स्टूडियो में जाएं तो उनके सारे बड़े बड़े दिग्गज कंपोजर्स के साथ एक तस्वीर मेरे पिताजी का भी है. Yes, I always see that collage. And I remember your father, Manas Mukherjee साहब. और I am a crazy fan of that song. मौसम आएगा जाएगा. True. Can you sing of? Sure. This song has been composed by Shaan's father, Manas Mukherjee sahab, written by Vithalbhai Patel. जी wow my God, hats off यार. Vithalbhai Patel wrote many songs. झूठ बोले कौवा काटे. I've been a fan of all musicians, music directors. Affiando. मतलब ये what is there's a special word for for a music connoisseur that पता नहीं जो भी हो, but that is pretty much Nikhil ji. Yeah. That time there was no encyclopedia of music. I was a small encyclopedia. I won't praise myself, but that's from where I became a music director. Right. So your father's song, I remember Vijendra Gadge, Nita Mehta. Correct? And उनकी खासियत ये थी डैड की कि कंपोज करना, एंटायर म्यूजिक अरेंजमेंट करना और फ्लोर पे कंडक्ट करना. तो and he could play an instrument to tell you exactly how oh my you God, want. I'm getting goosebumps. You know that accordion part? Yes. कोई नहीं सोच सकता था. कोई नहीं. मौसम आएगा जाएगा. इतना एक बीट में. अलग सब. Because he had assisted Salil Chaudhary ji and Anand bhai. तो the greats, so the greats. So Salil se he learned कि नहीं, music should also be not just composing of a song.
it should be the interludes. Even your interlude should be remembered. Yes, yes, तो yes, yes, yes. गा लेता हूँ गाना, बातें Please, तो please, चलती रहेगी. please, please, please. तो मन्ना दा, हाँ, right. मन्ना डे साहब, the great Asha मन्ना ji, डे हाँ? साहब, and आशा जी, Yes, आशा जी. मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्कुराएगा. ओ मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्कुराएगा. हो बाहों में तेरे मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना. हो बाहों में तेरे मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना. है सारा जहां गुनगुनाएगा, मौसम आएगा जाएगा, हाँ प्यार सदा मुस्कुराएगा. Beautiful. And in fact, सुरेश ताली जी और बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशनल अकॉर्डिंग प्लेयर्स हैं, उनको इस गाने का वो पीस ना, they मेक इट एज अ क्लास to understand the speed at which it can be played. I'm so sorry, I should mention the original. हाँ, सुमित दा. देखिए वो तो encyclopedia यहाँ है और मैं तो भुलक्कड़, बट हाँ सुमित दा ने ये पीस बजाया था. सुमित मित्रा जी. So ऐसे बहुत सारे डैडी के एक गाना जो रवि साहब की बरसी में गाया जाता है, because it's a song about beautiful song written by निदा फासली साहब. खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा. खुशबू हूँ मैं जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा. खुशबू हूँ मैं. Wonderful. स्केल जरा ऊंचा ले लिया मैं. कोई बात नहीं. That's we are natural singers. I mean. नहीं बिल्कुल. That's your that's why you always throw your voice. हाँ नहीं You always लेकिन and you have a fantastic range. इस गाने को I think at age 10 सोनू हमारे सबके प्यारे सोनू निगम भाई ने इस गाने को उनके डैडी ने उनको कहा था कि बेटा ये गाना सुन सीख. 1980 we lose Ravi साहब. So this must have been Sonu of course was born in 73, तो maybe 83 या 84 के उनके सी में ये उन्होंने गाया होगा. So he was hardly 10 or 11. तो उनके डैड के साथ भी डैड का एक अजीब सा किस्सा हुआ था. तो तभी उस ज़माने में ना जब बम्बई आते तो किसको पता चल गया था कि रेलवे क्वार्टर्स में एक रूम मिलता था जिसका सेपरेट एंट्री होती थी, स्पाइरल स्टेयरकेस. उसको रेलवे क्वार्टर्स में भी बोलते थे सर्वेंट्स क्वार्टर होता वो. क्योंकि ब्रिटिश के ज़माने में जो बने थे ना, तो दे वो लवली स्टोन हाउसेज, 2-3 माले के स्टोन हाउसेज होते थे लोअर परेल में, एल्फिंस्टन रोड में. और जो दे हैड अ सेपरेट रूम विद अ सेपरेट एंट्री एग्जिट फॉर द सर्विस. करेक्ट. वो रूम उन लोग भाड़े में देते थे बहुत कम सस्ते में. अच्छा. तो वहाँ दोनों मिले. तो जब सोनू जी के डैडी ने मुझको ये कहानी नहीं बताया था, सोनू के डैडी ने ऑफ कोर्स हमारे अगम कुमार साहब ने बोले बेटा आओ तो मुझे किस्सा बताता हूँ. तो बताया कि मैं वहाँ गया, मिलके कोई शंग्रीला जी थे वहाँ के जो पूरा वो स्कीम देखते थे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द मिड और लेट 60s जी. तो बोले कि सर मैं कमरा ढूंढ रहा हूँ. तो बोले क्या करते हो? बोले मैं गाना गाता हूँ, रफ़ी साहब के गाना गाता हूँ, वॉइस ऑफ रफ़ी. बोले आओ मिलो, यहाँ बैठे हैं वॉइस ऑफ मुकेश. तो हेलो जी, वॉइस ऑफ मुकेश यानी मेरे डैड थे. तो मेरे डैड भी तभी ऑर्केस्ट्रा में गाते थे. और तभी आपकी अपनी वॉइस हो तो फर्क नहीं पड़ता. यू हैव टू बी आइदर वॉइस ऑफ किशोर, वॉइस ऑफ रफ़ी, वॉइस ऑफ मुकेश. ये फिक्स था. तो बोलो मिल लो दोनों, वॉइस ऑफ रफ़ी, वॉइस ऑफ मुकेश, दोनों बेचारे ना घर ना वो आबूदाना ढूंढ रहे हैं दोनों. तो मिले तो फिर डैड बोलने लगे यार मैंने ऑलरेडी शादी की कमिटमेंट कर दी है, शादी करके अभी वाइफ को लाना है, तो ये कमरा मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बोले तो सोनू के डैड ने मैं तो अभी भी सिंगल हूँ. ठीक है आप रख लो. और उस चक्कर में उनका फिर बम्बई का जो वो स्टिंट था वो कट शॉर्ट हो गया, वापस उन्हें दिल्ली जाना पड़ा. लेकिन ही ऑलवेज रिमेंबर्स मीटिंग दिस जेंटलमैन कॉल्ड मानस मुखर्जी. तो बहुत साल बाद जब डैड का ये गाना भी आया तो it was one of Ravi Saab's last songs. The film was released also in 1980. Correct, it's a beautiful song. What I mean, lovely. I तो heard. तभी उसके छोटे से उस बेटे को बोला ये गाना सीख और नाम याद रखना मानस मुखर्जी, बहुत अच्छे कंपोजर थे. मैंने उनसे मिला था. तो ये कहानी अगम जी ने मुझे खुद बताई. Oh my God, so nostalgic. So nice यार.
audiences, friends. ये बातें पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ कर पा रहा हूँ क्योंकि you understand the. I understand. And योगेश जी की बात जहाँ से शुरू हुई थी, देखिए हम कहाँ पहुँच गए. Correct. योगेश जी के साथ तो बहुत सारे गाने भी किए. योगेश जी was like a family friend. Yes. एक बार मेरा बर्थडे था और बर्थडे के दिन क्या हो गया कि डैडी के सारे दोस्त हैं और मैं उनको वो ड्रिंक्स और ठंडा पानी और स्नैक्स और ये सब सर्व कर रहा हूँ. तो एक पॉइंट पे मैं आया वापस और तो हम लोग मम्मी भी उन्हें जोगुदा बुलाते थे. Correct. जोगुदा. तो मैं तो बोले क्या तू बड़ा उदास लग रहा है, क्या हुआ? तो बोला देखिए ना, मेरा बर्थडे है और पार्टी आप लोगों की हो रही है और कोई गिफ्ट विफ्ट भी कुछ नहीं. ऐसा मेरा एक ब्रेकडाउन हो गया वहाँ. अरे गिफ्ट ला ना, मैं भूल गया तुझे देने. टिपिकल योगी जी की जो आवाज़ थी ना, अरे क्या बात कर रहा है, रुक करके 2 DC के कॉमिक बुक्स ले आए पहली बार. वो इम्पोर्टेड वाले थे, वो बैटमैन और सुपरमैन वाले. तो माई फर्स्ट रियल प्रॉपर गिफ्ट वॉज बाय योगेश जी. एंड फिर वो बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा मानस, ये कोई बात हुई यार, बेटे का जन्मदिन है, चलो सब मिलके कुछ करते हैं, कुछ गाना बना करते हैं बेटे के नाम पे. और दे सेलिब्रेट माई बर्थडे लिटिल बिट थैंक्स टू हिम. एंड many beautiful memories with योगेश जी. और लास्ट तक भी उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, आई हैव ऑलवेज sung for him and enjoyed. और मेरा एक पहले एल्बम में उन्होंने गाना भी लिखा था. Okay. जग लागे सोना रे सोना, कैसे जीवो वो ना ऐसे तन्हा, इस तरह का एक उन्होंने लिखा था गाना. So he's been very supportive, very kind. पिताजी के साथ बहुत सारे लाखों की बात, महानंदा, हर फिल्म में उनके गाने थे. लेकिन एक जो बहुत प्यारा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, उसका प्ले ऑफ वर्ड्स बहुत प्यारा था. एक तुम हो जिसे हम तो कभी याद ना आए, एक हम हैं जो तुम्हें कभी भूल ना पाए, एक तुम हो जिसे हम तो कभी याद ना आए. क्या बात है, क्या This is from लाखों की बात. Yes. I know. I have heard everything. That's what I used to do. I used to only do my studies and hear music. तो I loved that play. एक हम है जो तुम्हें भूल नहीं पा रहे और एक तुम हो जो हमें कभी याद ही नहीं करते हो. It's beautifully played. हाँ. Shaan brother, you just released a single जी known as प्यार तो बस प्यार है, correct? जी. And that was shot on an iPhone. iPhone 14, yeah. And I'll just share one secret. कि after seeing that video, I bought iPhone Pro Max. They should pay us for this. हम लोग इतना अच्छा ad बनाया उनके लिए. I must congratulate you. That's a beautiful song and beautiful concept of that video in that in that beautiful restaurant. Actually, that restaurant belongs to a friend of mine. तो हम लोग वहाँ गए थे तो ऐसी बात में निकली, बोले bro अपना जगह समझो, if you want to shoot a video, do something, use it in the day, तो जगह फ्री है. तो मैंने कहा यार तो कुछ करना पड़ेगा जल्दी से. तो फिर ये गाना था मेरे पास, मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट बनाया कि वो हर and they actually have singers who come and perform there. Okay. And in fact, Happydemic, my wife's company, they do this. They send young talented singers to perform at not just restaurants, also corporate shows. Yes. They also have a property called Songstruck. तो जैसे आप समझ लीजिए कि आपके पेरेंट्स का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, but for some reason you're not there, or you want to give them something, so you give them this singer who comes in, sings their favorite songs. There's a little nostalgia and that kind of a thing. So it's called Songstruck. You just songstruck them for their anniversary or their birthday. It's such a great concept, Yeah. So this song is actually in collaboration with Happydemic also, क्योंकि मंजू सांगी जी, dear friend now, but we met through another common friend. So she's a lyricist and she यार बोले मैं तो लिखते रहती हूँ, लेकिन क्या होगा इन गानों का, ऐसे चलो इसका गाना बनाते हैं. लेकिन बहुत अच्छा लिखा. And जी बहुत अच्छा लिखा आपने. जी तो उन्हीं के कुछ गाने थे, तो things just fell in place. Okay. And then another dear friend of mine, Ritika Bajaj, she does great videos and everything. So I said यार लेकिन budget है नहीं. They said we want to try out our new so they got these rigs for iPhone 14 Pro Max. Yeah. So we'll experiment on your song. Let's do it on iPhone 14. Super. तो उस तरह से सब कुछ हुआ. Can you sing that song? It's lovely. Yeah, it's sure. You're sitting on that, on that. वो typically वो जैसे सिंगर होते हैं ना, एक गिटार लेके गाना गाते हैं लोग, खाना खा रहे हैं. It's a beautiful song. It's a beautiful song. Yeah. Really. So it's also a note to all the
live singers across, maybe Yes. not big names, but they send entertainment to people. Correct. तो I also played ऐसा ही कोई कैरेक्टर, तो गिटार बजा के गा रहा है कि प्यार तो बस प्यार है, घर है ना है ठिकाना, दिल दिल में है बसा, वही है आशियाना, Beautiful. सदियों से चलता आया है, सदियों तक चलता जाएगा, जब तुम ना होंगे हम ना होंगे, ये प्यार ही दास्तां सुनाएगा. क्या बात है, क्या बात है. So yeah, it's about human relationships and it's love in a more universal way. कि it's just जो कनेक्ट बनता है वो इसी को प्यार कहते हैं. बिल्कुल. You see the views ना, उसे पता चलता है. वो and I saw the comments below. जी, See, जी. these songs, the youth love them, जी. And आपको बताऊं, मैं जब शुरू में कंपोज करता था ना, तो आई शुड ट्राई एंड प्रूव कि यार मैं भी कर सकता हूँ. मैं बिकॉज माय फादर्स कंपोजिशंस वर अ लिटिल ऑफ द सेंटर, काफ़ी वो यूज्ड टू लाइक टू क्रिएटिविटी काफ़ी उसमें रहता था. वेरी ओरिजिनल कंपोजर. Yes. तो उनसे डेफिनेटली मैंने ये सीखा है कि अगर आप खुद को कंपोजर कहलाते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू प्लेजराइज, नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. इट शुड बी ओरिजिनल वर्क, इट शुड कम फ्रॉम विद इन. Yes. तो मैं सो फार आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव नेवर picked any music or any piece or even a groove or anything, try to make it as original. तो original रहते रहते I also realized कि it should be pleasing to the ears. It should be एक कहीं ना कहीं एक slightly heard before, एक pleasant feel तो आनी चाहिए गाने में. उसको बहुत ज़्यादा आप उसमें मुश्किलात डाल देंगे तो वो aliened हो जाता है. जो सुन रहा है ना, बोलते यार ये कुछ भारी चीज़ है, रहने दो. तो I try to keep it simple and connected. correct. जी. There are so many songs of yours which have touched so many people's hearts. One song which I particularly remember is Jab Se Tere Naina. I remember Somu Seal, the guitarist. जी. निखिल जी आज लॉन्च है और एक गाना आएगा जब से तेरे नैना. I remember his words on the phone. And Shaan ने ऐसा गाया. How was your collaboration with Monty ji and and Sanjay Leela Bhansali? Monty and me go back many years. Of course, he's from the great illustrious Parlalji family. Yes. And so he also started his career as an arranger, as a musician, as a fantastic pianist. Many moons earlier. मुझे तो हमेशा लगता था कि मुझसे शायद सीनियर होंगे मॉन्टी. फिर पता चला कि he's younger than me. Okay. But because he started work so early. Correct. And so we did quite a few songs in the past also. But for some reason फिल्में उस तरह से आई नहीं, बनी नहीं. And then of course after Black and he was also with Ismail Darbarji in the making of all the Devdas and everything us time pe as a music producer. So then he got this massive break on Savariya. Yes. तो but यही अच्छी बात है कि पुराने दोस्तों को भूले नहीं, बोले यार शान एक गाना है. और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इस्माइल जी के साथ मैं बैठा था. Correct. तो मुझे बताने लगे कि यार तू एक फ़ोन लगा दे संजय को. सर लेकिन आप तो कर नहीं रहे हो, म्यूज़िक मॉन्टी कर रहा है, वो अजीब होगा. उनको मैं कभी भी, आपको भी पता है, कंपोजर तक ही अपनी कनेक्शन रहती है. वो कंपोजर को सुपरसीड करके सीधे डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को फ़ोन करना, वो आई फाइंड दैट लिटिल ऑड. कभी आई मीन नाउ इट्स वेरी कॉमन, बट अपने टाइम में ऐसा नहीं था. Correct. कि यू कैन कॉल अ एक्टर और कॉल अ कंपोज, इफ योर फ्रेंड्स इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अदरवाइज हाँ, कंपोजर तक सर हाउ आर यू, ये वो, रियली एंजॉयड सिंग दैट सॉन्ग फॉर यू, होप वी मीट, इतना तक हम लोग कर सकते हैं. बट अरे मैं कह रहा हूँ, मैं लगा देता हूँ फ़ोन, रुक करके ही कॉल्ड अप संजय जी, बोले कि आप तो सिंग, अरे ऑफ कोर्स कम लेट्स ट्राई अ सॉन्ग टुगेदर. ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ जब से तेरे नैना आई रियलाइज संजय लीला बंसाली इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर. वो गा कर बता रहे थे कि कैसे क्या करना है. So and he pretty much took over the recording. At that time we didn't know that there is a composer hidden in him. The very next film, I think Guzarish and all, he started composing himself. Ram Leela and everything. So anyway, that was a beautiful experience, and singing Jab Se Tere Naina gave me so many awards, compliments. लेकिन आशा जी का compliment पाना उस गाने के लिए, so that was the icing on the cake. You have to sing it. हाँ, नहीं बिल्कुल. And the expression which you have put in the song, I mean there are no words to express. नहीं वो तो मतलब when I saw it on screen, I could feel it coming straight here. हाँ. जब से तेरे नैना
मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, हो तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे, हो जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। क्या बात है, क्या बात है। अरे थैंक यू। उस टाइम पे एक्चुअली एक ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रेट नोट्स वाले वेस्टर्न इन्फ्लुएंस गाने का एक वक्त आ गया था। ज़्यादातर मैं ही वैसे गाने गाता था, तो मेरे लिए इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कास्टिंग कि थोड़ा सा इसमें वो मुड़कियाँ हरकतें और इंडियन स्टाइल की एक स्विंग थी उसमें। Correct. और वो that whole rhythm pattern। एक और आपको एक बात बताता हूँ, इसमें जो वो तब से दीवाना हुआ आहा वो और वो वो ढोल वाला पार्ट वो था नहीं मैंने जब गाना गाया था। ओके, दैट वाज एडेड एज अ पोस्ट लेटर। अच्छा, लेटर। हाँ, वरना मुझे लगता है अगर वो मिल जाए तो आई वुड हैव जैसे लागे रे तब से दीवाना हुआ, उसमें और शायद मैं और एनर्जी डालता। बट आई थिंक दैट इज व्हाट वर्कड आल्सो कि वो एनर्जेटिक ट्रैक है लेकिन वो गा रहा है स्वीट इसी मूड में। हाँ, करेक्ट। तो जीनियस ऑफ कोर्स मॉन्टी समीर जी जिन्होंने इस गाने को इतना प्यारा लिखा उन्होंने। जी शान भाई, तना दिल is another song and there are two songs I'll talk back to back. One is तना दिल and one is बहती हवा। जी बहती हवा, when it comes, I mean, I think the titles are also there in that song, and there are two versions in the beginning, of it. Yeah. It comes in the end also, if I'm not mistaken. No, then it comes in bits. It comes in bits, but whenever it comes, and and the expressions on Kareena Kapoor's face, when there's I mean, I distinctly remember, she's feeling that you're going to go. Oh, where are you? Amir Khan, where are you? I mean, it completely matches, a song made for the situation. And the way you sung those high notes. अरे नहीं आपको बताऊं, that time I was going through a nodule situation and I was told to keep complete voice rest. So this is from month of June this situation started and till about October जब भी मैं गाना गाऊं वो खराश आता था आवाज़ में। ओके। एंड उस बीच में राजश्री का एक बहुत ही एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, एक विवाह ऐसा भी जस्ट आफ्टर विवाह एंड रविंद्र जैन जी म्यूजिक एंड दे व्हेन दे कास्ट देन दे वांट द सेम आर्टिस्ट फॉर द होल प्रोजेक्ट। तो मिडवे ये सिचुएशन शुरू हो गया था। ओके। जब भी गाऊं तो ऐसी वो कर्कश साउंड आती थी। ओके। और उसी दौरान ये भी गाना मिला और मैं सोचा कि यार इतनी बड़ी फिल्म का इतना बड़ा गाना भी कैसे क्या होगा। वो गाने भी मैं इसलिए मैनेज कर पा रहा था एक विवाह ऐसे भी क्योंकि वो हम लोग ब्लू डायमंड में रिकॉर्ड करते थे और ब्लू डायमंड का कॉन्सेप्ट ये था कि आपके रूम में और जो मॉनिटर रूम में ना टीवी खराब हो गई थी तो ओनली यू कैन ओनली हियर द वॉइस यू ओनली। तो आई यूज्ड टू एक्चुअली क्योंकि व्हेन आई सीन द लैप्रोस्कोपी तो देखा था कि जो नॉड्यूल्स आर ऑन वन वॉल ऑन वन साइड। तो आई फिगर्ड कि अगर मैं इस तरह से मतलब यहाँ माइक है यहाँ बॉडी रख के ऐसे करके गाना होता है मुझ में तू है बसी ऐसे कर जो भी वो एक विवाह ऐसे के गाने या किसी दिन लग रहा कि ऐसे करने से और क्लियर हो रहा है ऐसा करके गाया था वो। और बहुत मुश्किल से बहुत वेरी डार्क टाइम्स एज अ सिंगर बट थैंक गॉड आई रिकवर्ड एंड नाउ इट्स गॉट बेटर देन बिफोर। बट जो भी हो इस गाने के लिए एडवांटेज ये हो गया था क्योंकि बहती हवा में हमको तो राहें थी चलाती तो वो भी मिड रेंज में नहीं था, वो लो रेंज में था। वहाँ वो नॉड्यूल वर नॉट इफेक्टिंग और फिर बहती हवा सा था वो फिर हाई रेंज में था। तो कहीं ना कहीं शायद गाना ही ऐसा बना था कि दैट होल मिड रेंज एरिया में इट वाज नॉट बीइंग इफेक्टेड। सो मिरेक्युलसली ये गाना हो गया ड्यूरिंग द वर्स्ट पीरियड ऑफ माई वॉइस बिकॉज वो आप ही समझ सकते हो टेक्निकली ये था कि लो था और हाई था एंड आई थिंक द नॉड्यूल्स वर इफेक्टिंग द मिड नोट्स। Okay. So that's how I managed to sing that song. When you hear this song, I mean, it sounds perfect. I mean, I just heard it, just 10-20 days back. Also, I love hearing different composers and different singers and all. So, can you just sing a little gist of Behti Hawa? That song, Nikhil ji, has a very strange connect with younger children. Yes. 3-4 साल के बच्चे कई पेरेंट्स बोलते हैं कि उनको गाना सुनाते तो उनको पता नहीं थेरेप्यूटिक सा लगता है। वो चंचल बच्चे होते हैं
attention they are like running on, बच्चे जैसे होते हैं. Correct. तो उनको सुनाते तो उनको वो पीस मिलता है, वो खुद जा के ये गाना सुनते. 3-4 it can't be a coincidence कि इतनी बार यही बात मुझे मिली है. Anyway, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो. हो हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो. हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो. क्या बात है. One of my favorite composers is Ram Sampath ji also. Of course. And Tanha Dil was another song that was path breaking. It brought the pop revolution. Yes. You know that you can make a song without a film and rock, and the video is also damn good. You know. Of course, before we move to Tanha Dil, there are certain people who I'm very, very close to. Shantanu Moitra, Yes, Shantanu the Moitra. composer, Swanand, who wrote the song. Yes, lovely. We are buddies. Like we are like, you know, कभी भी catch up. चलो यार मिलते हैं, बहुत दिन हुआ नहीं, उस तरह का एक feel है. And of course, राजू ईरानी, you know, लोग थोड़े से ताजुब होंगे, उनको मैं राजू की बुला रहा हूँ, but we also go back a very, very long way when, you know, used to make these small films for you know, just for private circulation of corporates. Okay. तो उसमें हम लोग गानों के spoofs करते थे. और जैसे कि अगर उस ज़माने में जैसे दिलवाले दुल्हनिया के गाने बहुत हिट थे, या फिर जैसे कोई साबुन का है तो उसमें जैसे लड़की है क्या रे वाह वाह, साबुन का नाम बोल के है क्या रे वाह वाह, या फिर कुछ आटा का एक याद है हम लोग ने, तुझे देखा तो ये जाना सनम, रोटी होती है क्यों नरम नरम. ऐसे फिर वो आई कांट टेक नेम्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स, बट या सो फिर तो इस तरह की चीज़ें करते थे. सो वी काइंड ऑफ सो एंड सिंस देन one of the most humble, easygoing, beautiful personalities is Rajkumar Irani, and so I've enjoyed working a lot of in his films, be it Three Idiots, be it और उनसे भी पहले जिनके साथ मेरा कनेक्ट बना, that is Mr. विदु विनोद चोपड़ा. So lovely. अभी लोग कहते हैं कि यार वो मतलब वो अपने बड़े मूडी हैं, ये हैं. I have only got affection, love and you know and kindness from that man. And एक तरह से मेरी debut was thanks to him. Okay. So when he made परिंदा, तो उसमें एक कितनी है प्यारी प्यारी दोस्ती हमारी, जो यार की खुशी वो खुशी है हमारी. ये तो शैलेंद्र जी और सुरेश जी ने गाया था, जो वॉज शॉट यू नो विद अनिल कपूर एंड अनुपम खेर. लेकिन उसमें जो फ्लैशबैक में चले जाते बच्चों में, तो उसमें कुछ लाइन्स थे जो बच्चे याद करें, तो उसमें जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर था, ही वाज स्लाइटली मोर ग्रोन अप. तो उनके लिए मैंने उनके बचपन का मैंने प्लेबैक किया कि हाँ, ताकत से डरेगा हर आदमी हमारी, फिर बोले ताकत से नहीं, प्यार से, सादगी से करके. और दूसरी वॉइसेस वाज प्रीति उत्तम एंड ऑफ कोर्स सागरिका माय सिस्टर. वो मुझे मना के कहते हैं कि उस तरह से, तो जो भी हो. सो फॉर दैट वन लाइन विदु जी गेव मी क्रेडिट, सो आई कैन एक्चुअली से दैट आई डेब्यूड फॉर द ग्रेट पंचम दा. अरे क्या बात है, क्या बात है. वे बैक इन द फिल्म परिंदा फॉर एक लाइन के लिए. And so and he then told me that, "Arey, you don't know, I've come home, I played cricket with you." He used to assist Said Mirza ji. So Dad ने एक film, हाँ, Dad had done a film, Albert Pinto को गुस्सा क्यों आता है, and then they had done almost, they were doing sittings for another film also. So he knows me from then. He's saying, "Arey, don't worry, I'm always there with you." Even his next film also, it's a fun film, but I've done some bit lines in that also. So I've got a lot of love and support from these people, so I had to mention them. मैं कभी ये जिक्र नहीं किया हूँ. बहुत अच्छा. इस podcast में, you know, Shaan has come out with very unusual facts about many of his you know life incidences, and I think it's very unique because he's told us so many good things, you know. No, निखिल जी, actually उसके बाद की जो कहानी है वो सबको पता है. तो I think this is, we can actually title this going back memory lane, because we are not able to come to 2000 तक ही नहीं आ पा रहा है. बार we are going back into the 90s, going back into the 80s sometimes. परिंदा तो कब की बात हो रही है अभी. Correct. But तन्हा दिल of course 2000, and तन्हा दिल की भी कहानी शुरू हुई by 97 itself. Yes. So we are already done a project, Ram and me, Labology. Yes, correct. Labology entire project हम लोगों ने shoestring budget में किया था. So Ram not only composed the songs, not only produced the songs, he kind of even balanced and
mixed the songs. Okay. So he really, and I of course wrote all the songs as a lyricist. क्या बात है. And he composed 4, I composed 4 songs. Okay. So between the two of us, we completed that entire project. Tanadil. क्या बात है. But it's a landmark project, you know. जी. Actually, Shaan bhai, every song of yours is a landmark. नहीं. That song Shona. हाय शोना. Please sing a line of that before Tanadil. आपको तो पता है कि मुझे माइक में जाने का जो मजा आता है और किसी चीज में नहीं आता, तो मैं कभी भी किसी प्रोजेक्ट को ना नहीं कहता. करेक्ट. तो उस चक्कर में बहुत सारे ऐसे भी किए हैं जो लैंडमार्क नहीं होंगे, बट आई एम ग्लैड दैट सम अनएक्सपेक्टेड songs have also become very popular, like a song from This Is Love, वो एक गाना था ना, मुस्कान था, नमीदानम. हाँ, वो तो चलो, बट एक छोटी फिल्म का एक था ना, इट वाज अबाउट सेम जनरल लव, ऐसा एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल फिल्म थी उसमें. अच्छा, करेक्ट. पर वो गाना भी लोग बहुत दे शेयर ऑन व्हाट्सएप. Okay, we'll get to that song. Yeah. Just I need you to sing क्या शोना and तनादिल. राम संपत and तनादिल. Yes, राम संपत मुझे एक म्यूजिक में वो तभी एक शाकुहाची, एक फ्लूट का, एक बहुत पॉपुलर जापानीज फ्लूट का टोन हुआ था. करेक्ट. तो वो मुझको ना गाने जो वो खुद कंपोज करता था, वो उस टोन में मुझे भेजता था. उसका ऐसा टोन, उसमें एक बेंडिंग टाइप का नोट था. अच्छा, ये तो चाइनीज गाना लग रहा है यार. इस पे क्या पूरा पेंटाटोनिक स्केल भी था उसका थोड़ा सा. ये क्या गाना बनाया, मतलब मुझको तो चाइनीज वर्ड्स आ रहा है, सायोनारा ऐसा फील आ रहा था मेरे दिमाग में. लेकिन मेरे मन में था कि मैं अपने दोस्तों के लिए गाना लिखूं. करेक्ट. हम सब स्कूल में साथ में थे, उसके बाद हम सब अलग अलग वो सब अब्रॉड चले गए. करेक्ट. और कमाल है कि मैं लिखता गया और एग्जैक्ट मीटर में वो फिट हो गया. अरे तो वो था आंखों में सपने लिए, तो ये बनी आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ. मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का चाहा. मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ. तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर तन्हा दिल. And back to back शोना. ए शोना तुम्हें पता तो होगा कि तुम पे मैं फिदा हूँ. तुम्हें है जब से चाहा, हवाओं में उड़ता हूँ. तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में. ए शोना. Of course, Neil is one of my favorite composers. Yes. Vishal Shekhar have done a great job, and all the songs. Das also का गाना. Yeah. Until a certain, I think till almost 2008, 2009. And I was part of almost all their projects, them and Shankar Ehsaan Lawyer, doing some beautiful music with Vishal Shekhar as well as Shankar Ehsaan Lawyer, as well as Preetham. Sajid Wajid, actually, they stuck with me for much longer. Wajid के साथ एक अलग ही chemistry, एक अलग ही दोस्ती हो गई थी. And many composers, आपके साथ कितने गाने हुए. We always keep doing something. Namidanam and कितने गाने हुए. So that was a great time. Great time. So Anand Raj Anand जी के साथ बहुत सारे interesting गाने हुए. Annu ji, I think the maximum songs I've sung are for Himesh Reshmiya ji and Annu Malik. Yes, correct. So I had some great experiences with all the composers. That was a crazy time. 2000 से लेके 2010 तक, it was a good 10 years of good solid songs. It's difficult. You're still there. I mean, you're still your independent music. बस बीच में आपके गाने आते हैं. जी. हाँ, वो तो. That's it, because आज एक फिल्म रिलीज हुई है. Music School with the great maestro Ilayaraja ji. अरे क्या बात है. This is news. I'm a great fan. Acting भी किया, dancing भी किया है. I'm a part of the cast. क्या बात है. Super. Alfred. हाँ, वो गोवा का. I talk like a Goa boy man. अरे क्या बात है. और वो typical एक character है उसमें. Very bindas. Typical गोवा वाले होते हैं ना, एकदम chilled out. Correct. तो वैसे ही है. उसे समझ नहीं आ रहा कि the girl has moved on now. She has someone else in her life. ये अपने में ही पड़ा है. Okay. He is trying to patch up with her जबरदस्ती का. Okay. और वो उसकी बात सुनता ही नहीं, मतलब अजीब सा कैरेक्टर है. Very interesting character they created. But with Shreya Saran and Sharman Joshi. So this is a new. So my introduction was correct, huh? हाँ, Music School. Music School is the name of the film. Of course, by the time the podcast comes out, the film will already have been there and पता नहीं.
but it's a lovely project. It's a great project because इसकी जो takeaway है is very important. So That हम nice. बच्चों को इतना ज़्यादा academics में push करते हैं, ना sports में push करते हैं, ना you know cultural activities में इतना push करते हैं, especially when it comes to performing arts, you know music, drama, dance, you know they don't take it seriously. उनको लगता है, especially parents को लगता है कि ये सब करके क्या होगा बच्चे का, but it's therapeutic. You know एक बच्चों में to do a project together, you know to work together, and music of course has its beautiful calming you know effects which helps children de-stress. So it's very Correct. important that we take up an instrument or take up vocal training or Correct. just appreciation of music. Shaan brother, first of all, it's been great यार, मजा आ गया सबसे नहीं, पहले नहीं, यार, नहीं, बहुत मजा आ गया. Friends, you know, like I've been a music director for last 30 years, but I always envy singers because how do they do that last? How do they give that finishing touch? I saw your videos. जी They have given the correct insights. नहीं, thank you. The real वो बोलते हैं ना secret, जो secrets आपने share किए. क्योंकि honestly निखिल जी मैं काफ़ी हद तक self taught ही रहा, and I went to गुरुजी उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब at the age of 32. तो you know उससे पहले already काफ़ी कुछ हो गया था in terms of as a singer I was already established and everything. So of course उसके बाद I got to know the finer nuances, और जहाँ काम आया वो अब आ रहा है, क्योंकि till about 35-40 if you're not a trained artist you can pull off on just sheer you know exuberance. Correct. And natural flair. But for the voice when it starts aging, it's one of the earlier things that start aging. उसमें जो एक you know vibrato बढ़ जाता है, range आपकी थोड़ी सी घटने लगती है, थकान जल्दी से आ जाती है. It's a very delicate organ. तो then is when you need to up your रियाज. कई लोग कहते कि अरे बचपन में बहुत कर लिया अब वो चल रहा है, बट आई थिंक व्हाट आई हैव रियलाइज पर्सनली इज़ दैट ये 40 के बाद जो रोज़ हारमोनियम पे करना होता है ना, दैट कैन एक्चुअली टेक यू वेल इनटू योर 50s and 60s. वरना वो वॉइस आपका साथ देना छोड़ देती बाय द टाइम यू आर 50-55, यू नो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स I'm making up for lost time. I didn't practice or do much riyaz growing up, but I had these little nuggets of, a lot of it came from other, you know, singers who were very very helpful. जैसे एक बार हरि जी ने मुझे बताया, ये बात उसमें भी नहीं है, तो गा रहा था और बोल रहे हैं माइक तो चल रहा है ना, he has a very, you've also worked with हरिहरन जी के बारे में बोल रहे हैं, सिंगर हरिहरन जी. his humor. तो ले शान माइक है ना, तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो ऐसे नहीं सर, वो थ्रो ला रहा हूँ ना, थोड़ा इट्स फन सॉन्ग ये वो. हाँ तो थ्रो जितना लाएगा उतना यू हैव टू थ्रो योर वॉइस एट वन पॉइंट. सो आई थिंक उसको मैनेज करो, उसको ब्रिंग इन द बाइट, bring in the excitement, but don't bring in the volume, because then it sounds like you're shouting, it doesn't sound like you're singing. So you know, then he explained how that can be done, where the voice has that shine, it feels you're giving all out, but you're not shouting and screaming. He's saying किशोर दा रवि साहब कभी चिल्लाते नहीं थे, गाते थे, तो चिल्ला रहा है. So that you know, since that day I made a note of that. उदित जी ने मुझे बहुत अच्छी आइडिया बताई थी, बोले जब भी सूर्य या कुछ थोड़ा सा नर्वस आ रहे हो ना, माइक पे आप गा रहे हो, कंपोजर हैं, थिंक ऑफ द वर्ड्स. ओके. वर्ड्स के साथ आपको ऑटोमेटिकली जो सिंगिंग फ्रेजिंग है ना, कहाँ इज द राइट कॉमा, विच इज द राइट syllable to stress on, which is the right point where you can take a breath, which is not spoiling the meaning of the song. वो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी. लेकिन हम हमेशा सुर सोचते हैं कि ये नोट लगेगा, ये नोट लगेगा, वो भूल जाओ, वो ऑटोमेटिकली लगेगा जब आपकी जो आप कह रहे हो ना वो साफ होगा. एंड ऑफ कोर्स यू विल से द वर्ड्स मोर विथ मोर क्लैरिटी. तो दे ऑल बिन, लोगों को लगता है कि पता नहीं सिंगर्स के कंपटीशन है, ये है वो, बट आई हैव गॉट मोस्ट ऑफ माई knowledge and a lot from Amar Haldipur ji also, from my colleagues and seniors, and so it's been wonderful. What is your take on health and mental health and physical health for a singer? Because I see always, whenever I've recorded with you, you go regularly to the gym. जी. So बहुत अच्छा. Even I do a little bit of running. I also go. But you've been very religious about it. I enjoy it, and it helps me with because I'm performing on stage and there jumping, singing a good 2 hours every other day. So I need to stay fit and stay. Also, अगर लोग देख रहे हैं यार, they see someone is looking fit and good, they'll like it ना, rather than. तो I try and keep myself. But आपने सही बात कही कि mental health, physical health. So
एक मुझे एक बहुत बड़े काउंसलर डॉक्टर है जिन्होंने कहा कि वी शुड स्टॉप डिवाइडिंग दिस इनटू टू थिंग्स. Mental is also physical and physical is also mental. Okay. So when we talk about health, it means people think when we talk about health, it's only physical health. But mental health is what can help you improve your physical health and vice versa. So for mental health, I'm lately, of course with experience you learn, you realize कि इंसान छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस ले लेता है, गुस्से में आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डर आ जाता है, और ये सारी चीज़ें आर एक्चुअली जस्ट इन योर हेड. सो एक्सेप्ट, गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट, बी मतलब मैंने सीखा है बी इम्प्रेस्ड ईजिली एंड बी एंड गो नेगेटिव वेरी डिफिकल्ट, मेक द रूल्स ऑफ गोइंग नेगेटिव वेरी 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 डिफिकल्ट. इतनी आसानी से कोई चीज़ आपका मेंटल बैलेंस बिगाड़ना नहीं चाहिए किसी चीज़ को. छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, नो, it has to be a lot for me to go that way. Correct. And because if you don't do that, obviously, we are human. We have to, not keep things pent up. I feel, मुझे जो लगता है तो मैं कह देता हूँ. Correct. क्योंकि जितना आप बॉटल इन करेंगे, जितना वो कहाँ जाके ब्लास्ट होता है, and then you realize यार वो बेचारे की क्या गलती थी, मैं 4-6 लोगों की चीज़ उस पर डाल दिया. ये भी हो जाता है कई बार. And so I try to, keep my mind very cool and relaxed, which was not there earlier. It's only coming with time and experience. Okay. So, and actually I've done a lot of interviews with psychiatrists and doctors about mental health, about medical depression, about all these things, and how keeping yourself physically active helps in keeping your mental state of mind in a better space. Nutrition is also a part of that. Sleep is a part of that. हम लोग हमें लगता है we very proudly say अरे मैं तो बस 3 घंटे 4 घंटे सोता हूँ, आराम है. But sleep is very important. Good sleep, at least I read somewhere 3 cycles of 1.5 hours of uninterrupted sleep, that is 4.5 hours of uninterrupted sleep, does wonders. But we keep, it's very difficult to get that. Correct. So sometimes you need longer hours of sleep. So you need a minimum of 6 hours of sleep 6 hours, at least to run the whole day with energy. तो ये कुछ चीज़ें रखता हूँ. एक चीज़ पता नहीं एक्सीडेंटली आ गया कि खाने से पहले मैं पानी नहीं पीता और खाने के दौरान पानी नहीं पीता और खाने के एटलीस्ट 40-50 मिनट बाद तक भी मैं पानी नहीं पीता. And then later I read somewhere that is a very good practice. Yes. To avoid drinking water while you're Yes. having your food. And हाँ, आलसी हूँ तो I sleep well. I get sleep well. वो भी अच्छी बात है. क्या बात है. So yeah, a lot of things have over the years accidentally सही, but I've realized I've been doing the right practice, not having too much of aerated drinks, colas, sugars. So I have my coffee without. I also realized थोड़ा milk intolerance है, lacto intolerance है. So I have my coffee without sugar and milk. So and like to keep myself active. No, that's really good. That shows, Shaan, नहीं. because we all, they say ना, एक मेरा दोस्त हमेशा बोलता है retire तो expire. हाँ नहीं. तो कभी मुझे वो याद रहता है retire तो expire ना, कि अभी मैंने बहुत कर लिया. I've done a lot, man. You're going to go up. नहीं. You're going to go up because the body is meant to move. True. So I see. Your channel and everything. I mean, it shows that you're doing something very out of the box, You're there, man. You're there. And whenever you come to sing, you're always there, Shaan. I mean, there's no two doubts about that. 2 more questions I had for you. One is, now the social media platforms like Instagram, Facebook and all have come. There's so much of talent. जी, of course, Correct? of course, So, yes. with so much of talent, how do you handle this? I mean, what tips can you give, these upcoming singers and all? Something, because I see sometimes some people come, then sometimes they get depressed very fast, So, what tips can you give these upcoming singers? No, I think not just singers. Anyone today is the one virtue that मेहनती हैं, focused हैं, ambitious हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन patience की थोड़ी कमी है. Okay, this is the key. Patience, सबर. हाँ. अगर वो 1-2 साल 3 साल में एक चीज़ नहीं हो रही है ना, तो they can't deal with it. I have 2 growing boys in my house also. One is 21, one is 18. Yeah, how I heard they sing also very well. Yes, they're both into music. My sister always, she's connected with this organization. Younger boy, he keeps putting up stuff on social media. He's singing. He's learning classical music, Western music. He's learning guitar.
ही इज़ लर्निंग डांस, वर्किंग आउट, पॉप स्टार बनना है उसे, और पूरी तो एक चीज़ है जो मैं हमेशा, एक और मेरी एक टिपिकल बात है कि मेहनत का मज़ा लो। करेक्ट, क्या बात। मेहनत को अगर आप मेहनत या आप यार फिर उठ के करना है, यार उठ के करना है, यू नो, एंजॉय फिजिकल हार्ड वर्क, एंजॉय मेंटल हार्ड वर्क, मेक इट अ फन प्रोसेस, डोंट मेक इट अ स्ट्रगल। कोई बोलता मैं तो सर मैं स्ट्रगलर हूँ, आई हेट दैट वर्ड। यस 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 यस। यू नो, नाउ व्हेन वी गो बैक, आवर बेस्ट टाइम्स, आवर फनेस्ट मोस्ट फन मेमोरीज वर आर स्ट्रगल टाइम्स। कहाँ जाके बैठे रहते थे हम लोग, अभी क्या करना है पता नहीं, सुबह शाम क्या होगी, यू हैव नो क्लू, यू नो, कहीं पहुंच गए, वापस का बस टिकट नहीं है अपने पास, क्या करें, चलो चल के घर चले जाएंगे, यू नो, इट्स ऑल फन। सो वी हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट। आई विल टेल एवरी यंगस्टर जस्ट दैट, एंजॉय द प्रोसेस एंड डोंट वरी अबाउट कि ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, वो नहीं हुआ तो क्या हो गया। And right now I'm reading about affirmations, I'm reading about manifestations. Yes. तो वो करते रहो। You have two choices. एक ये सोचना कि यार मैं करूँगा लेकिन नहीं हुआ तो, और एक सोचो कि मैं करूँगा, हो गया तो आगे क्या करना है। So always stay positive. ये सुपर है, हो गया तो। हाँ, फिर मैं यही सोचता हूँ, you know, when I get up, मैं बोलता निखिल जी आपको 30 साल हुए, आपको मालूम है आपने 1989 में गाने शुरू किए, मुझे कुछ याद ही नहीं, मुझे अभी 3-4 प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर मैं मेहनत करूंगा। आई सी दैट इन यू, आई एम नॉट कंपेयरिंग माय सेल्फ विद यू। दिस आल्सो फ्रॉम द ग्रेट आशा जी, यू नो, आई वाज टॉकिंग टू आशा जी, तो मैंने पिताजी के बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, तो मैंने उनको, मैं कहा आशा जी आपके पास, मेरे पास वो गाने हैं आपके, मैं चाहता हूँ मैं आपको, यू नो, एक CD सब ट्रांसफ़र करके गिफ्ट करूँ, तूने सुना? तो बोला हाँ, कैसा लगा? तो बोला आशिफ ऑफकोर्स आपने गाया, कमाल ही लगा, मतलब यू नो आप कैसे गा लेती थी, तभी तो कोई भी कुछ भी नहीं था, तो ठीक है ना, अब नया कुछ है तो बता। क्या बात है। Move on. बोले हो चुका है, वो गा चुकी है, ओके, अभी नया कुछ है तो बता। तो आशा जी मैं समझा नहीं, बोले हाँ मैं हर दिन नया दिन है, हर काम मेरा पहला और आखिरी प्रोजेक्ट है, उस पर पूरा एकदम जी जान लगा के करना, जो हो चुका है ना, वो अभी दुनिया एंजॉय कर रही है ना, मैं क्या करूँगी सुन के वो गाना। क्या बात है। तो हाँ कुछ नया है तो बता। तो that is so I was like wow, this is the attitude to have यार। क्या बात है। I know Shaan bhai from, I don't know, 1990. He's still the same. That time he had just started his career, but now he's got everything. But he's still very grounded, very polite to everybody. Always talks. He doesn't neglect anybody. Like I've seen this. You know, he talks to each and every person. What is the secret here of being grounded in spite of having everything? I don't know, Nikhil ji. I think I'm my mother's son, or you know, my mom struggled a lot. I know. But with all the struggle, you know, she lost her husband so early. Before that also, she was the breadwinner of the house. You know, पिताजी creative इंसान थे, कभी काम मिला नहीं मिला, वो भी था, मैं काम नहीं मांगूंगा, ये वो मैं तो वो अपने मस्ती में जिए और अपने मस्ती में गए. बट मॉम, यू नो, बट वो था, कभी चेहरे पे मुस्कान ना हो. आपने तो ये वर्क विद हर सो मच यू डन. एक मैं शान भाई आपको रोकूंगा. जी 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 जी. मेरे आंखों में आंसू है. मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ. जी जी जी. योगेश जी ने फर्स्ट टाइम सोनाली जी से मुझे इंट्रोड्यूस किया. जी 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 जी. ही इज वेरी क्लोज टू. तो मैं उसको पर्सनली फ़ोन करता था. जी जी जी. क्योंकि वो मानस जी की वाइफ है. शी यूज्ड टू ब्लेस मी एवरी रिकॉर्डिंग. No, of course. रिकॉर्डिंग खत्म होता था बॉम्बे लैब में, सनी सुपर साउंड में, सब लोग जाते थे. सोनाली जी कहते हैं नमस्कार. सॉन्ग वॉज ब्यूटिफुल. निखिल जी आपने इतना अच्छा गाना बनाया, थैंक यू. ये दिल से कहती थी. वो जो वर्ड्स थे ना. शी इज द कंपोजर्स वाइफ, सो शी नोज कि कंपोजर को अप्रिसिएशन से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए. बिल्कुल. अगर कोई आके कंपोजर को कह दे कि अरे सुपर हिट गाना है, उससे भी बहुत अच्छा गाना है, ये सुनने के लिए. क्योंकि उस समय ना प्रोड्यूसर्स भी ना, जब गाना रिकॉर्ड भी होता था ना, कुछ प्रोड्यूसर्स बहुत रिएक्ट करते थे, कुछ करते भी नहीं थे. तब सोनाली जी आती थी. थैंक यू सो मच. अरे व्हाट अ सॉन्ग, क्या मिनट. बस अरे उन्होंने बोल दिया ना. छोड़िए प्रोड्यूसर, छोड़िए डायरेक्टर, बस सोनाली जी ने बोला खत्म. एंड शी इज टू, एंड यू नो, इट इज टू मोटिवेट अस आल्सो, यू नो, कि सबको गाना अच्छा लगना चाहिए. So I'm just sharing this. नहीं बिल्कुल. Just sharing this thing. That is why, you know. That is why I think and तो वही था कि, you know, इतना कुछ करने के बाद भी she never ever तुम्हें पता है मैंने ऐसे दिन निकाले, मैंने इतना ये किया वो किया. हमेशा स्माइल एंड मूव ऑन. बिल्कुल. तो आई थिंक हम जहाँ ये शूट कर रहे हैं, दिस इज मॉम्स रूम, मॉम्स एरिया. मतलब अंदर उनका रूम है, बट रूम से आकर यहीं आकर बैठती.
Okay, okay. वहाँ मैंने उनका चेयर मंदिर एक अलग से बनाया So था. sweet, so sweet. So I lost her now early 2022. I know it. तो but of course you know कई कबार यहाँ बैठ के टीवी देखती थी, मैं आ जाता था, कुछ चल रहा है टीवी पे, सुन रही है, हर चीज़ को अप्रिशिएट करती थी. Yes, yes, I know because I used to interact with her. She was always smiling, very quiet and very focused on her work. हाँ हाँ. मैंने बस इसको उनको देखा, बस कभी कुछ आप बात वो नहीं extra. लता जी का कोई पुराना गाना सुना दो तो बस आंखों में आंसू और वो स्माइल और उफ, उफ, ऐसा कर रही जैसे. तभी तो ऑफकोर्स लता जी वॉज हर गॉड इन ऑन अर्थ कि उनके गाने सुन के ओ मेरा हाथ, अगर कोई जगह सुनती ना अच्छी ना तो ऐसा ही मदन मोहन जी का स्पेशली गाने होना. Correct. तो वो हम लोग रोज़ बैठ के कोई एक गाना सुनते थे साथ में और एनालाइज करते थे उसको कि कहाँ उन्होंने सांस कहाँ ली होगी, कुछ समझ नहीं यार, ऐसा करते रहती थी. लेकिन एक तो मैं आके उनको कहता था कि यार आपने भी क्या क्या गाने सुने, हम लोग भी क्या किया, अरे आजकल कैसे गाने बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है, ये हो रहा है, और आपका बेटा देखो घर में बैठा है, ये वो. चलो कोविड के टाइम पे ये सब ऐसे मज़ा करता था उनके साथ. तो मुझे देखती थी, स्माइल देती थी, बोलती थी बहुत मिला है तुम्हें, कंप्लेन मत करो. Gratefulness. Yeah, stay grateful. So I learned a lot from her. Shaan, it was great talking to you on behalf of my show also. Chill. नहीं, of course. Superb, यार. You were so. I mean, this is like. मैं बहुत डरा हुआ था because you know I am not a नहीं professional DJ RJ, but I speak from my heart. बिल्कुल. And it's been a great experience, you know, being I forgot my script, I forgot everything. नहीं निखिल जी, देखिए ये जो बात है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ because you know you were in the industry, you understand music, and you know you're a positive person. आप वो अच्छा ये कह रहा है, शायद ये कहना चाह रहा है, you know वो manipulation आपके मन में कभी ना, आप यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट. तो आई कुड खुल के आपके साथ सारी बातें मैं कर सकता था. एंड वीव हैड अ वंडरफुल वर्किंग रिलेशनशिप एंड वीव डन सो मेनी सॉन्ग्स, सो मच ऑफ म्यूजिक टुगेदर. एंड सो इट्स ऑलवेज लवली टू टॉक विद यू. आई हैड ओनली वन पॉइंट श्याम भाई. जी. एक छोटा सा मुखड़ा मेरे पास है. हाँ जी. जो आपने गाया. जी. मुझे इश्क हुआ है कब से तुझसे मेरे जाना, ऑफ कोर्स तुझे यार कहूँ दिल मुझसे पूछ रहा है, तुझे यार कहूँ या यारम नमीदारम. आपके स्केल में आप करो, मैं अपने स्केल में करता. मुझे इश्क हुआ है कब से तुझसे मेरे जानम, दिल मुझसे पूछ रहा है, तुझे यार कहूँ या यारम नमीदानम मुझे दानम नमीदानम. सुपर हिट सॉन्ग. बहुत यार कहूँ या यारम, क्या समीर जी ऐसे प्रॉब्लम्स होने चाहिए लोगों की लाइफ में. भारी नहीं, ऐसे हल्के फुल्के, क्या कहूँ, यार कहूँ, यारम कहूँ. We must give the credit to Sameer ji. Of course. Chill with Nikhil.